So this is the part of basic ICT skills for level 3. First we have to know that formatting text in Word document, what does the formatting means? Formatting actually refers to the appearance or presentation of the text. It means how your text looks like. And when we'll talk about the looks, it means what is the color of the font, what is the size of the font or text, what is the style, and etc. These are the main things which we talk about when we talk about appearance or presentation or looks of the text. Now the second things come into the mind. What are the types of formatting? So there are basically two types of formatting. The first one is character formatting and the second one is paragraph formatting. So now let us see what is character formatting. Character formatting consists of font style. We can change the font style and the character formatting while we are doing the formatting in character of any sentence or text. We can change the font style. We can change font color, font size, font highlighting, bold, italic, underline. These are few options we can use when we'll do the character formatting in a Word document. The next is paragraph formatting. There are few options like alignments, bullets and numbers, indents, line spacing. These are few options we use them in case of paragraph formatting. So I hope that you understood. I hope that you understood this thing. And now let us do some practicals on Word documents so that these concepts or these options will be clear in your mind, that how we can use, and when we use these options what kind of impact is there, how the text changes, what is the change in the format of a text. So just see here, there is already a sentence written on this blank page of a Word document, and you can see here on the left side there is font formatting or character formatting. This is called as formatting toolbar. Suppose we have to use the options of formatting toolbar. First we have to select, this is font style. You can change the style of this format into any of these options like Arial Black, Aironi, Arial, Calibri. You can choose any of the option and your style of the font will change accordingly as you'll choose any of these options. Next is font size. You can increase or decrease the size. You can mention, there are so many sizes are mentioned. You can choose any of them. This is to grow font, to increase the size. You can use this option. When you click on this option, the size will increase, and the other option is for decreasing the size. And the next is clear formatting. It means if you don't want to use any formatting, any of the formatting, you can clear the formatting and your text will comes into the normal form or default form. Okay, so that option was clear formatting. This option is bold. All these options are applying on this text when it is selected on the screen. So you can use, if you use the bold, unbold, you have to click the second time. Bold means it will be a dark characters. Italic, you can use italic, it will become italic. The next option is underline. When you click on it, your sentence will underline automatically. For that you have to select the sentence or text. Next is strike through. Strike through means this option is used to create or draw a line in the middle of the text like it happened, and you can remove it by clicking. Next is subscript. It creates small letters below the text. Like you can it is used to create the small letters below the line. You can see this is the baseline and the text is below that line. And the next is superscript. Superscript is used to create letters above the line of the text. It is used to create footnote,
click insert footnote. Okay, so when you will select the text will go above the text line. You can see it here, it becomes small and goes above the text line. Okay, so this is superscript option. The next option is for the lowercase or uppercase. You can change the sentence case by using this option. You have to remember the icon of this. First you have to select the sentence you want to change, and if you select on lowercase, your all the characters of your sentence will become lowercase, and if you select uppercase, all letters will become capital. Next is capitalize each word. If you click on this option, the first letter of all words will capitalize. And the next is, if you click on toggle, it will reverse the process. The front, which was the first letter of each word which was capital, it will become small. Next is text highlighting. You can change the background of the sentence by using this option. By choosing any of the color given in the list, you can change the background or highlight your sentence. Next is font color. First you have to select the sentence, then you can use font color. Okay, so font color, you can use the colors given in this option. There are so many colors are given. Whatever color you want to choose, you can choose it easily, and it will be applicable on your font. This is very easy and simple. So this side was left side was filled with font characters, and here now you can see that on the right side of the formatting toolbar, this option is for paragraph formatting. These are the alignments. This is left alignment, this is center alignment, this is right alignment, and this is justified. Here are the options for bullets and numbering. There are few more options like indents, and these options are for spacing in between the paragraph lines or sentences. And you have to, if you want to give heading in the paragraph, means these options are just for the paragraph formatting, and these options are for the character formatting. I hope that you understood all these options, and it is clear to you that how to use. Now I will tell you about one more option in Microsoft Word document, and that is checking spelling and grammar in Microsoft Word. Okay, so आपको जैसे पता ही है कि स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक्स टाइपिंग करते वक्त टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में होना एक नॉर्मल सी बात है। तो उसके लिए हम अपने डॉक्यूमेंट को कैसे दोबारा वेरीफाई करते हैं, हम डॉक्यूमेंट को पूरा रीड करते हैं नॉर्मली, और उसको चेक करते हैं कि कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, जिसमें कि टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में आपको जो है एक टूल मिलेगा, जिससे आप ऑटोमेटिकली फास्ट जो है और ज़्यादा परफेक्ट वे में स्पेलिंग्स एंड ग्रामर को चेक कर सकते हैं। तो आई विल टेल यू द पाथ एंड हाउ टू यूज़ दिस ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। सो हेयर आर few steps to spell check and grammar. First you have to click on menu bar, then you have to click on tools option in the menu bar, then you have to click on spelling and grammar option in the menu bar. So this is the steps to use this spell check option in Microsoft Word document. Otherwise you can use a shortcut key, and that is F7 from your keyboard. आप F7 की को प्रेस करके डायरेक्टली भी स्पेल चेक और ग्रामर पे जा सकते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जांपल के साथ। आई हैव अ डॉक्यूमेंट इन विच देयर आर ऑलरेडी फ्यू वर्ड्स और सेंटेंसेस आर देयर। आप देख सकते हैं इस डॉक्यूमेंट में कुछ सेंटेंसेस पहले ही लिखे हैं, एक रिपोर्ट है, ठीक है। इसका हम जो है स्पेल चेक करेंगे। तो जो मैंने आपको अभी पाथ बताया, फर्स्ट यू हैव टू क्लिक ऑन मेन्यू बार, देन टूल्स, देन स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो दिस इज मेन्यू बार, ये मेन्यू बार है। फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टेबल, टूल्स, ये जितने भी ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं ये मेन्यू बार है। तो इसमें ये ऑप्शन रहा हमारा टूल्स।
सबसे पहला ही ऑप्शन स्पेलिंग एंड ग्रामर का है। इसके साथ इसकी एक शॉर्टकट की F7 भी दी है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि शॉर्टकट की जो है F7 है। अगर मैं कीबोर्ड से डायरेक्ट F7 दबाता हूँ तो भी मैं स्पेल चेक पे पहुँच जाऊँगा। तो आइए क्लिक करके देखते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, एक डायलॉग बॉक्स जो है वो प्रॉम्प्ट हुआ मेरी स्क्रीन पर। अब इसमें देखिए सबसे पहले क्या ऑप्शंस है। सबसे पहले बोल रहा है कि टेक्स्ट लैंग्वेज, यानी टेक्स्ट की लैंग्वेज आप किस लैंग्वेज में जो है वो चेक करना चाहते हो। हमें पता है कि ये इंग्लिश है, बट इंग्लिश भी ऑस्ट्रेलिया ने कनाडा की है, साउथ अफ्रीका, यूके और यूएसए। सपोज विल चूज यूएसए इंग्लिश। ओके, सो आप देख सकते हैं कि जो भी एरर होगा, जो भी टेक्स्ट होगा, वो जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, नॉट इन डिक्शनरी वाले कॉलम में। उसके बाद सजेशंस में ये मुझे सजेशन दे रहा है कि जो वाइवा वॉस करके ये ऑप्शन, ये जो वर्ड लिखा है, ये कहीं ना कहीं डिक्शनरी में एडिड नहीं है। तो इसके लिए सजेशंस है, कहीं ये वाइवा कॉव तो नहीं है, कहीं ये वाइवा वाइस तो नहीं है, कहीं ये वाइवा वॉइस तो नहीं है, वाइवा वोट तो नहीं है। अब मुझे ये सजेशंस क्यों दे रहा है? क्योंकि मैंने ऑप्शंस में जाके यहाँ पे देखिए टिक लगाए, चेक ग्रामर एज यू टाइप, मतलब मैंने ग्रामर ऑप्शन को जो है एनेबल किया हुआ है। इस वजह से मुझे ये ग्रामर सजेशन दे रहा है कि ऐसा वर्ड तो जो है वो है नहीं, तो यू कैन यूज़ दिस वर्ड्स। ठीक है, तो हाँ, ये वाइवा वॉइस तो कुछ होता नहीं है, शायद ये मिस्टेक हो गई होगी, इसलिए वाइवा वॉइस पे हम सिलेक्ट करते हैं। अब देयर आर फ्यू ऑप्शंस इन द राइट साइड, दैट इज़ फर्स्ट इज़ इग्नोर वंस। इग्नोर वंस का मतलब है कि इग्नोर करता हूँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि ये वर्ड ठीक है, ये इससे गलत फहमी है, बट ऐसा नहीं है, मैंने चेंज किया है। इग्नोर ऑल मतलब सब जगह इसको इग्नोर कर दें। और एंड हेयर यू कैन सी द चेंज, मैं इसको चेंज करूँगा तो चेंज पे क्लिक करूँगा, ये चेंज हो जाएगा। बट ये और जगह भी तो वाइवा वॉइस में हो सकता है कि टाइपिंग मिस्टेक हो, दोबारा से स्पेलिंग मिस्टेक आ जाए, तो मैं चेंज ऑल करूँगा तो सब जगह जहाँ वाइवा वॉस सिलेक्ट हुआ होगा वहाँ पे वाइवा वॉइस हो जाएगा। तो मैं चेंज ऑल कर देता हूँ। जैसे मैंने चेंज ऑल पे क्लिक किया, अब ये नेक्स्ट जो मिस्टेक है उसके पास पहुंच गया। अगेन इट इज़ हाईलाइटिंग, द कंप्यूटर इज़ हाईलाइटिंग दिस वर्ड इन रेड कलर। रेड कलर मीन्स कि कोई मिस्टेक है। ठीक है, अगेन हेयर इज़ वाइवा वॉस, बट दिस वाइवा वॉस वॉज डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस वाइवा वॉस। उसमें यहाँ पे बीच में हाइफन भी था, तो मैंने तो चेंज ऑल कर दिया था, तो सब में चेंज हो जाना चाहिए था, लेकिन ये डिफरेंट था, इसलिए ये सिर्फ वाइवा को एरर नहीं बता रहा है, सिर्फ वॉस को एरर बता रहा है। तो ये होना चाहिए वॉइस। ओके, तो मैंने इसको कर दिया चेंज ऑल। अब ये नेक्स्ट पे आ गया, वेट एज। ठीक है, अब वेटेज फॉर ईच, अब मैंने पता है मार्क्स वाली वेटेज यहाँ पे मेंशन किया था, लेकिन यहाँ पे ये वेट और एज को जो है वो अलग अलग बता रहा है, हाइफन के साथ बता रहा है या वेट बता रहा है, क्योंकि ग्रामर जो है ऑप्शन यूज़ है। तो मुझे पता है मैंने वेटेज, मार्क्स की वेटेज यहाँ पे वर्ड टाइप किया था, हो सकता है इसकी डिक्शनरी में ना हो, इसलिए मैं इसको इग्नोर करूँगा। इग्नोर वंस करूँगा तो अभी इग्नोर होगा, दोबारा ही आ जाएगा। मैं इग्नोर ऑल करूँगा तो ये सब जगह से ही इग्नोर हो जाएगा। नाउ इट इज़ इग्नोर। अब ईजी फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा था, लेकिन ये भी वर्ड जो है इसकी डिक्शनरी में नहीं है, सो ये मुझे एग एंड ERG जो सजेशन दे रहा है, तो मैं इसको भी इग्नोर ऑल कर दूंगा। स्टैंडर्डाइज, देखिए नेक्स्ट एरर बता रहा है स्टैंडर्डाइज। तो स्टैंडर्डाइज कोई डिक्शनरी में वर्ड नहीं, क्योंकि DISE लिखा है, तो ये मुझे सजेशन दे रहा है अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी और ग्रामर चेक, ये मुझे बता रहा है स्टैंडर्डाइज की स्पेलिंग ये है। तो वी विल गो फॉर दिस स्पेलिंग एंड वी विल क्लिक चेंज ऑल, ये चेंज हो गया। नाउ द नेक्स्ट इज एनेक्सर्स। हमें पता है एनेक्सर्स वर्ड करेक्ट है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ये एनेक्सिस बता रहा है तो मैं इसको करूँगा इग्नोर ऑल। अगेन एनेक्सिस बता रहा है इग्नोर ऑल। ठीक है, प्रोफॉर्मा, प्रोफॉर्मा बिल, तो ये बोल रहा है कि प्रोफॉर्म्स होता है, प्रोफॉर्म होता है, लेकिन मुझे पता है प्रोफॉर्मा आई हैव मेंशन्ड एंड इट माइट नॉट इन इट्स डिक्शनरी, तो मैं इसको इग्नोर ऑल करूँगा। आप देख सकते हैं एनेक्सर 1 अगेन वही बता रहा है, तो मैं इग्नोर ऑल करूँगा, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ। एनेक्सर 3 ये बार बार वही बता रहा है। एनेक्सर्स जितने भी है ये इसको मिस्टेक बता रहा है, तो मैं इग्नोर ऑल करता रहूँगा। नाउ द नेक्स्ट इज समग्र शिक्षा अभियान। तो ये हिंदी का वर्ड है, जैसे इंग्लिश में लिखा है, तो डिक्शनरी में इसके है नहीं, तो ये फिर से एरर बता रहा है, तो मैं इसको भी इग्नोर ऑल कर दूँगा। शिक्षा भी हिंदी का वर्ड है, देन अभियान भी हिंदी का वर्ड है, ये सबकी मिस्टेक बता रहा है। डिस्ट्रिक्ट सोलन एक प्लेस का नाम है, इसी वजह से ये जो है इसमें एरर बता रहा है, तो मैं इसको इग्नोर ऑल कर दूँगा। अब SL जो है कुछ शॉर्टकट की मैंने टेक्स्ट में लिखी होगी,
बट ये इसको कन्फ्यूज़न हो रहा है, इसलिए मैं इसको इग्नोर ऑल कर दूँगा। अब ये नाम है मिसेस कमनीश ठाकुर, तो ये किसी पर्सन का नेम है, तो ये भी बता रहा है कि डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इग्नोर ऑल। ठाकुर भी इग्नोर ऑल। ये देखो जितने भी पर्सन्स के नेम है इग्नोर ऑल। अब क्या हुआ लास्ट में जब ये कंप्लीट हो गया इसका स्पेल चेक, ऑटो स्पेल चेक, देन क्या बोल रहा है, कंटिन्यू चेकिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, राइट, यस, ओके, द स्पेल चेक इज़ कंप्लीट। ये आपके पास ऑप्शन आ गया, द स्पेल चेक इज़ कंप्लीट। मैं इसके ऊपर ओके क्लिक कर दूंगा। अब आपका डॉक्यूमेंट जो है सारा वेरीफाई हो गया। वंस अगेन टाइपिंग के बाद सारा डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाई हो चुका है और आपने इसको ऑटो स्पेल चेक भी कर लिया है, आपको वेरीफाई कर लिया है। इस टूल से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। आप फास्ट एरर्स को जो है अपने डॉक्यूमेंट में चेक कर सकते हैं और अपनी एफिशिएंसी को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, वर्किंग एफिशिएंसी और ज़्यादा अच्छी हो सकती है। आपका डॉक्यूमेंट जो है एक इडियोमेटिकली जो है करेक्ट होगा, ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। चांसेस बहुत कम हो जाते हैं इसमें एरर के, क्योंकि हमें कभी भी जॉब के लिए कोई डॉक्यूमेंट अप्लाई करना है या फिर हमें कोई ऑफिशियल लेटर बनाना है, तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स जो है बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग और कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकती है। इसलिए हमें जो है स्पेल चेक एंड ग्रामर ऑप्शन को जो है यूज़ करना आना चाहिए इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।